गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In our previous lecture we have discussed about the induced EMF in circuits as a result of time varying magnetic flux associated with the circuits, and we defined Faraday's first law and Faraday's second law. Faraday's first law said that induced EMF will be existing with the circuits, will be induced in the circuits till the circuits will be having an associated time varying magnetic flux. And second law stated something like that induced EMF in the circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux with time, or time rate of change of magnetic flux. Mean as much change in flux will take place with respect to time associated with the circuit, as much will be the magnitude of induced EMF or induced current. It's okay. ठीक है. The next task after the second law Faraday assigned for him was to find the direction of the induced EMF or induced current. But before providing any information about the direction of induced current or induced EMF, भगवान जी ने उनको अपने पास बुला लिया. ठीक है. ओके. ही वॉज नो मोर. फिर उनके साथ में जो पर्सन्स काम कर रहे थे, लैंजेस एंड ऑल, ओके, दे प्रोसीडेड विद द सेम थिंग, ओके, एंड मूविंग ऑन द सेम लाइन they provided information about the direction of induced current or induced EMF, and they added some more things to this particular statement which was given by Faraday law. Okay, that particular thing is known as Lange's law. What I said? Lange's law. How Lange's provided information about the direction of current? He said that induced EMF or current in a circuit is produced in such a way that it always opposes the change in flux associated with the circuit. It's okay? आराम से go through the situation. The direction of induced current or induced EMF always is such that in the circuit that it opposes the change in flux responsible for it. You know, जिस फ्लक्स के कारण ये इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF सर्किट में आ रहे हैं ना, ओके, दिस इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF opposes that change in flux. Okay, mean induced EMF exists in the circuit always to oppose, ये नेगेटिव साइन लगाया, d phi by dt. What Faraday has given in second law कि induced EMF is directly proportional to magnitude of induced EMF or induced current is directly proportional to rate of change of flux with respect to time. Okay, Lange's continued with the same statement, okay, and has put in this negative sign which conveys this particular thing that this induced EMF opposes this change in flux. Now you must be thinking how. Okay, so to understand this particular thing better, let's take an example. Now suppose we have this coil like this. Okay, ऐसे है बेटा, ऐसे circular coil having n turns, and we have a bar magnet.
अभी हमारा बार मैग्नेट इज स्टेशनरी। अब इसके मैग्नेटिक लाइंस आपको सबको पता है, चलो ड्रॉ करो पॉज करके। बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइंस इस लूप में से इस तरह से पास कर रहा है, ऐसे रेड लाइंस, ठीक है। लूप आपका इस प्लेन में है, परपेंडिकुलर टू द पेज। नाउ व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने इसको टुवर्ड्स कॉइल मूव करना स्टार्ट कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज, will there be any induced EMF or induced current in the loop? First thing. Second thing is, what will be the direction of the current in the loop? It's okay. अब मैं बेसिकली आपको लेंजेस लॉ का हाउ टू अप्लाई लेंजेस लॉ वो बताने वाला हूं। देखो बड़ा सिंपल सा, फर्स्ट पार्ट इज वेरी मच सिंपल। एज दिस मैग्नेट विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस रिंग, towards this coil, what will be happening? Number of lines जो इसके कारण इस रिंग को क्रॉस करेंगी, नंबर ऑफ लाइंस अभी कम है, जैसे आगे आएगा मोर नंबर ऑफ लाइंस विल बी पासिंग थ्रू इट, आगे आएगा मोर नंबर ऑफ लाइन, एज इट विल बी कमिंग नियरर 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 एंड नियरर to this particular coil, number of lines passing through this particular ring due to this bar magnet will increase with time. I just mean to say कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल, ओके, विद दिस कॉइल, फर्स्ट थिंग डी फाई बाय डी टी विल चेंज, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर कॉइल विल चेंज as the flux passing through this particular coil or flux associated with this coil is changing with time, therefore a proportional EMF will be induced in the considered coil. The first question का answer you have got, ठीक है, induced EMF, and as per the direction of induced EMF and resistance of this particular coil, ठीक है, तो उसमें करंट आ जाएगा, E is equal to IR, induced current will appear in the coil. Now the second thing is in which direction the induced current will be, in which direction the induced current will be. अब Langes ने क्या कहा, how Langes had given the information about the direction of current. Langes has told this particular thing कि induced EMF, okay, is such that कि it changes the variation of, it opposes the variation of flux. Mean if the flux is increasing, induced EMF or induced current that tries to reduce the flux. If flux is decreasing, okay, induced EMF और induced current इस तरह से होता है कि उसको increase कर दे। समझ में आया? देखो अब सबसे पहली चीज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि as this particular coil is in the influence of, ठीक है, सर्किट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम वेरिंग फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे होगा, पहला काम समाप्त। सेकंड थिंग अबाउट द डायरेक्शन, ओके, तो देखो अब नॉर्थ इसके नजदीक जा रहा है, एज द नॉर्थ इज गोइंग नियरर, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ लाइंस इन विच दिस पर्टिकुलर लूप इज एग्जिस्टिंग, मीन जो फ्लक्स इसके साथ चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड है ना, जो फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड है वो इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज मैग्नेट इज गोइंग नियरर। व्हाट आई सेड, फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस particular coil is increasing with time as the magnet is going nearer. ठीक है, समझ में आया? नाउ फ्लक्स इस मैग्नेट के कारण यहां पे इंक्रीज कर रहा है, ओके। अब इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर, इस कॉइल के अंदर करंट विल इंड्यूस सच दैट कि वो इस चेंज इन फ्लक्स को रिड्यूस करे। चेंज इन फ्लक्स रिड्यूस कैसे होगा? इस नॉर्थ को रिपेल करना पड़ेगा, इस नॉर्थ को रिपेल करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे जो इंड्यूस्ड पोल है, इसके करंट के कारण, इस करंट के कारण, इंड्यूस्ड करंट के कारण जो इंड्यूस्ड पोल बने यहां पे, वो बने नॉर्थ इंड्यूस्ड।
अगर यहां पे नॉर्थ इंड्यूस बनेगा इस करंट कैरिंग लूप के कारण, इस सर्किट के कारण यहां पे, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, इट विल बी रिपेलिंग इट, रिपेल करने की कोशिश करेगा, मतलब आ गई टेंडेंसी। ठीक है, अब यहां पे आपको इंड्यूस्ड पोल का नेचर पता चल गया। नाउ यहां पे मीन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सर्किट, induced pole has to be north. Why? Because only north will be able to repel this particular north and will be having tendency to reduce the flux. अब reduce कर पाए चाहे ना कर पाए, that is not the headache, but tendency generate कर दो वहां पे। यहां पे इसको रिपेलिंग टेंडेंसी जनरेट हो गया, इसको, इस नॉर्थ को रिपेल करने का टेंडेंसी इस कॉइल ने जनरेट कर दिया यहां पे नॉर्थ इंड्यूस करके। अब यहां पे नॉर्थ इंड्यूस करने के लिए इसका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। करो याद, बताया था आपको, सी याद करवा देता हूं। ठीक है, अगर टॉप पे नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक, टॉप पे नॉर्थ पोल बन रहा है, तो वो कब बनेगा, जब करंट फ्लोइंग इन द करंट लूप इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, याद आया। एंड अगर यहां पे साउथ पोल बन रहा है, टॉप पे साउथ, तो साउथ के एरोज ऐसे लगाने हैं, तो जब साउथ अगर टॉप पे बन रहा है तो लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट होगा, क्लॉकवाइज करंट, इट्स ओके। और नॉर्थ जब बनेगा तो लूप का टॉप पे बनेगा, जब नॉर्थ बनेगा टॉप पे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। अब यहां ये जो हमारा लूप है, लूप के इस साइड पे नॉर्थ इंड्यूस नॉर्थ बन रहा है, मतलब ऑब्जर्वेशन इस साइड से ली जा रही है। अब तो इस साइड से जब ऑब्जर्वेशन ली जा रही है, जिस साइड नॉर्थ बन रहा है, मैंने कहा था टॉप पे, तो मैं टॉप से ही तो देख रहा हूं, तो इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट बनना चाहिए। समझ में आया? तो सेकंड का आंसर क्या मिला, करंट इन द गिवन सर्किट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट शुड इंड्यूस okay in current loop in circuit. इट्स ओके, समझ में आया? देखो करना कैसे है, दोबारा से अगेन मैं बताता हूं। एज दिस नॉर्थ इज गोइंग नियरर, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सर्किट विल इंक्रीज। अगर इंक्रीज है तो एज पर लेंजेस लॉ इस फ्लक्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस क्या कौन करेगा, इंड्यूस्ड पोल। इंड्यूस्ड पोल कैसा होना चाहिए, नॉर्थ, तभी तो वो नॉर्थ को रिपेल करेगा। इंड्यूस्ड पोल यहां नॉर्थ बनाने के लिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम जहां पे नॉर्थ बना है, यहां से ये ऑब्जर्वेशन है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको उल्टी साइड से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगा। ऐसा काम नहीं करना है। जहां पोल की आप बात कर रहे हो वहीं पे आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो इसको एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है। इट्स ओके, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर सिचुएशन। दिस इज वन मोर सिचुएशन। इट्स ओके। दिस सर्किट क्लोज कंडक्टर एंड टर्न्स इन द कॉइल, ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है इस प्लेन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। Now this is south, this is north. This magnet is going away. अब ध्यान देना, with velocity v. It's okay. In motion उसका away side पे है। अब उसका आंसर तो आप कर दोगे कि yes, there will be an induced current. ठीक है? Okay. What will be the direction of current? आराम से इसको पॉज कर दो, ठीक है, और आराम से फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके,
तो आपको शायद आंसर मिल गया होगा. नाउ लेट अस सी हाउ द इंड्यूस करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट. अब मैं पहले इसका मैग्नेटिक लाइंस मार्क कर लूं. ठीक, ये मैग्नेटिक लाइंस है इस तरह से. इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये नॉर्थ होता तो ये आउटवर्ड होती, साउथ है तो साउथ की तरफ. ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे लीव फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर्स फ्रॉम साउथ. तो इनके डायरेक्शन इनसाइड होगा ऐसे. इट्स ओके. नाउ योर मैग्नेट इज मूविंग अवे. ठीक है, एज द मैग्नेट इज मूविंग अवे तो इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो रिड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि ये दूर जा रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस इसके थ्रू जो पास करेंगी वो कम होती जाएंगी. तो फ्लक्स जो है डी फाई, इन विच दिस इज एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ पावर मैग्नेट, डी फाई क्या करेगा? दैट इज रिड्यूसिंग. तो इंड्यूस फ्लक्स आएगा पिक्चर में, इंड्यूस पोल आएगा पिक्चर में. इंड्यूस पोल क्या करेगा? ये साउथ दूर जा रहा है, फ्लक्स रिड्यूस कर रहा है. इंड्यूस पोल को यहां पे आना पड़ेगा और किस तरह की पोलैरिटी लानी पड़ेगी सो दैट उसको दूर जाने से रोक सके, मतलब उसको अट्रैक्ट करे. अट्रैक्ट करने के लिए यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? अगेन नॉर्थ. ठीक है ना, नॉर्थ बनाना पड़ेगा. इंड्यूस पोल इज द नॉर्थ पोल. पता चल गया? तभी तो वो फ्लक्स को अपोज करेगा. फ्लक्स भाई रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है. तो इंड्यूस पोल, इंड्यूस करंट उसको क्या करेगा? इंक्रीज करने का कोशिश करेगा. वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मूविंग अवे, तो ये इंक्रीज करने का कोशिश करेगा बाय अट्रैक्टिंग इट. वो बात अलग है कर पाए या ना कर पाए. ठीक है, तो यहां अपोजिंग पोल जनरेट हो गया. अब ये अपोजिंग पोल आप इधर से जब ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो यहां से देखने पे इसमें करंट कैसा बनना चाहिए? इस लूप के अंदर नॉर्थ है, नॉर्थ के लिए करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज. इट्स ओके, समझ में आ गया? नाउ सम ऑफ द थॉट्स से दैट, और यहां पे क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाता है, दिमाग के अंदर आता है कि जो ये लेंजेस लॉ है ना, लेंजेस लॉ, ठीक है, लेंजेस लॉ violates the conservation of energy. It violates the conservation of energy. ठीक है, फाइन. नाउ एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे वायलेट कर रहा है? लेट अस सी, देख लेते हैं. चलो, ठीक कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? देखो, as this magnet is going away, energy associated with this ring is reducing. Okay, एनर्जी एसोसिएटेड इसके साथ क्या कर रहा है? रिड्यूस करेगा. तो E माइनस डेल्टा E. ठीक है, इसका एनर्जी रिड्यूस कर रहा है. अब एनर्जी रिड्यूस करने से अब क्या हुआ? क्योंकि मैग्नेट इज गोइंग अवे तो फ्लक्स रिड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिक एनर्जी रिड्यूस कर रहा है. मैग्नेटिक एनर्जी रिड्यूस कर रहा है तो यहां पे नॉर्थ पोल आया. क्यों? क्योंकि फ्लक्स भी तो फ्लक्स रिड्यूस कर रहा था. फ्लक्स रिड्यूस कर रहा है तो उसको इंक्रीज करने का टेंडेंसी लेके आना है. लेंजेस लॉ ने वही तो कहा. तो इंक्रीज करने का टेंडेंसी लेके आया, यहां पे अट्रैक्टिंग पोल जनरेट हो गया, दैट इज नॉर्थ. वो क्या करेगा? अट्रैक्टिंग टेंडेंसी लेके आएगा. ठीक है, एंड जब वो अट्रैक्टिंग टेंडेंसी लेके आ रहा है तो क्या करेगा? विल परफॉर्म वर्क टू अट्रैक्ट. विल परफॉर्म वर्क टू अट्रैक्ट. व्हाट आई सेड? ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, विल परफॉर्म वर्क टू अट्रैक्ट. अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा? डेल्टा ई एनर्जी उसका इंक्रीज करवा देगा. और जब ये E माइनस डेल्टा ई हो गया था, जब उसमें E माइनस डेल्टा ई में डेल्टा ई ऐड हो जाएगा, फाइन, तो क्या होगा? एनर्जी इट विल बी रिमेनिंग सेम. सिस्टम का इनिशियली एनर्जी E था, इनिशियली एनर्जी E था. मैग्नेट ने दूर जाना शुरू किया, सेकंड स्टेप में एनर्जी हो गया E माइनस डेल्टा ई. ठीक है, उसके बाद क्या किया? यहां पे इन
पोल इंड्यूस हुआ ड्यू टू इंड्यूस करंट, पोल अट्रैक्टिंग था, अट्रैक्शन के लिए उसने वर्क किया, तो एनर्जी उसके अंदर डेल्टा ई ऐड कर दिया, थर्ड स्टेप में एनर्जी फिर से सेम। तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दैट इज लेंजेस लॉ, दिस इज इन अकॉर्डेंस टू कंजर्वेशन और नॉट। भाई एनर्जी जितना था उतना ही रहा कि नहीं? दिस इज इन कंजर्वेशन, दिस इज इन अकॉर्डेंस टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेट्स टेक द प्रीवियस सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? मैग्नेट इज कमिंग नियरर, एज द मैग्नेट इज कमिंग नियरर, इसका सिस्टम का एनर्जी ई था, मैग्नेट इज कमिंग नियरर, ई प्लस डेल्टा ई, मैग्नेटिक एनर्जी ऐड हो रहा है ना सिस्टम के साथ, ई प्लस डेल्टा ई, यहां पे रिपेलिंग पोल आ गया। रिपेलिंग पोल क्या करेगा? रिपेल करने के लिए वर्क करेगा, रिपेल करने के लिए वर्क करेगा मतलब ठीक एनर्जी, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस एनर्जी बाय डेल्टा ई। ये लो, डेल्टा ई उसने एनर्जी रिड्यूस किया, क्यों? क्योंकि वर्कड, इट हैज वर्कड टू रिपेल, इट हैज, ये जो इंड्यूस नॉर्थ है, इट हैज वर्कड टू रिपेल द बार मैग्नेट। नाउ इंड्यूस पोल हैज वर्कड टू रिपेल द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट को रिपेल करने के लिए वर्क करेगा, रिपेल करने के लिए वर्क करेगा, तो बट ऑब्वियस व्हाट विल बी हैपनिंग? डेल्टा ई, एनर्जी विल रिड्यूस, और दोनों कैंसिल होके टोटल एनर्जी अगेन कितना बन गया? ई, इनिशियली ई और फाइनली भी ई। तो लेंजेस लॉ इज एग्जैक्टली परफेक्टली इन अकॉर्डेंस टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजेस लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है, इट इज इन अकॉर्डेंस टू दैट। इट्स ओके, नाउ गो थ्रू द कंटेंट, and if still there is any confusion, let me know about. Okay, we will be taking that thing in next lecture. Thank you, have a nice day.